पहले तो एक डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूँगा. इफ़ यू आर कमिंग टू कॉलेज आफ्टर सीइंग थ्री इडियट्स या छिछोरे, it is not like that. Always look out for opportunities, always capitalize on them. Okay, so hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. This is the very first episode of Perspectives, and in Perspectives we'll be having various guests. We'll be welcoming students from the Delhi University circuit. We'll be discussing about their experience, about college, about Delhi University, about CUET and a lot of stuff. So make sure that you subscribe to the channel very first thing that if do before listening to the podcast further. And in the very first episode of Perspectives, today we have with us Anish, who is now a second year student at Shahid Sukhdev College of Business Studies, pursuing his bachelor's in management studies. So, hi Anish, welcome to the podcast. How are you doing? Hi Ashley, thank you for inviting me. I think not a lot of people would know. She just posted a kind of a post on LinkedIn and invited people. I thought it was really cool and I signed up for it. Later received a DM from her that we could actually do a podcast, and I was really excited for the prospect, and it was a no-brainer for me. I just signed up for it and here I am right now. Thank you, Anish. How do you feel being the very first guest on the very first episode? It's a bit. I'm a bit nervous because this is the first time. This is the first time for me. It's the same for me, don't worry. Okay, so we'll start with your college experience very first, Sure. okay? So you have been through the first year of college. Yeah. How was the experience? Like life at Delhi University, लोग जो imagine करते हैं, क्या वो reality वैसी है? What do you think? Like, let's give it a bit introduction to your first Sure. year. Yeah. मैं पहले तो एक डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूँगा. इफ़ यू आर कमिंग टू कॉलेज आफ्टर सीइंग थ्री इडियट्स या छिछोरे, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सिंपली ऑनेस्ट ट्रुथ वही है, क्योंकि वहाँ पे फ़न पे फोकस करते हैं. इन रियल लाइफ तुम्हें अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग सिचुएशंस को करना पड़ता है, विच आर नॉट ऑलवेज रियली फन टू बी इन. एंड coming into college, coming into Delhi, if you are from outside Delhi, if you are born and brought up in anywhere outside Delhi, like I was born and brought up in Jammu and Kashmir, so the amount of exposure we had there was very limited compared to Delhi. On my very first day I noticed that the people are running here. No one is stopping for you. You have to run with the crowd if you want to survive in a good sense. It's not like they will kill you. It's like कि तुम पीछे रह जाओगे अपने competition में अपने friends के साथ. And you don't want that at the end of the day. चाहे जितने भी अच्छे friends हो तुम्हारे, अगर तुम पीछे रह जाते हो, then it's on you. आप किसी और को उसके लिए नहीं बोल सकते हो. And overall, if I talk about my first year in my college, it has been amazing. It has been really amazing, really rewarding. I have kept myself busy throughout the year. I have done internships. I have done live projects. I have pushed myself a lot, and that has been really rewarding for me. Not a lot. If I see around me, not a lot of people have pushed themselves, and I think that is a major learning that you should take if you are coming into your college years or college time. You should always push yourself. You should always look for opportunities. I think when I came to college in the very first week, I heard a quote from Kevin Hart. So Kevin Hart, the comedian from US. So basically what he said was he performed really poorly in his SAT scores because he wanted to go to a trip that his friends were going with. So when the results came, he was like, he did very poorly, like 600. The average is around 1300. So he discovered that his friends had gotten into Duke University and other prestigious universities. He noticed that they had already given their SAT examinations and then later went to the trip, and they had already arranged for their exams prior to the trip. So they looked out for themselves. However, he didn't do that, and he lost an opportunity to get into a good college. His learning from that was noted. No opportunity should be taken from granted from now on, and that has been my mindset from the first day itself. If you want to grow in college, be it dramatics, Sukhdev has a lot of dramatics club opportunities, and the dramatic scene in Sukhdev is very very amazing, and some of my friends are in dramatics. They are huge into it. They often go to Mandi House. I have talked to them. They are really colorful people. If you are into dramatics, Delhi University can be your home. Mandi House में तुम रहोगे 24 घंटा. उसके अलावा if you are into debating stock is very huge in Sukhdev.
आई हैव हर्ड 3-3 बजे तक वो डिबेटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते. तो opportunities are everywhere and in every field. You have just have to look out for them and you have to capitalize on them. अगर तुम वो नहीं करते हो then it's on you. That has been the learning from my first year, and that is one advice that I would give to any first year coming to college. Always look out for opportunities, always capitalize on them. Yeah. Yeah, I agree to that. मतलब opportunities actually इतनी ज़्यादा होती है in the first year. You're very confused about what to choose, no? That So is true. yeah, you have to majorly identify कि आपका ultimate goal क्या है. Is it Yes, yes. like aligning with your interests or not? So yeah. Yeah, also just I want to add to that. Mm-hmm. If you're not really clear about कि तुम क्या करना चाहते हो, or if you are just interested, like if I talk about, मैंने एक गेमिंग क्लब ज्वाइन कर लिया था in the starting of my second semester. उस टाइम पे I wasn't clear कि मेरे को क्या करना है आगे जाके. तो I felt it was really interesting. It was a new angle to my personality. तो why not give it a shot? चलो आगे जाके अगर हेल्प नहीं करेगा तो currently it can add something to me, to my life and to my personality. Never give up those kinds of opportunities because they spice up your life in a sense. Yeah, exactly. So how would you describe your college in one word? I think not a lot of people know about Shahid Sukhdev. If you know about Shahid Sukhdev, then you know how big of a deal it is being in this Yeah, college. exactly. We just got the top BBA college for the 5th time from India Today rankings, and I really feel I still remember the time when I got Shahid Sukhdev from the CUET examinations. I was jumping around my house. I was shouting on top of my lungs because for me it was a big deal. पहले मेरे को सुखदेव के बारे में इतना पता नहीं था. एक्चुअली आई गॉट टू नो अबाउट इट जब मेरे 12th खत्म हो गया था. बोर्ड्स मैंने दे दिए थे जब मैं रिसर्च कर रहा था कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है और उसको कैसे रैंक करते हैं अलग अलग कॉलेजेस को. जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया शहीद सुखदेव के बारे में, आई गॉट टू नो कि भाई ये तो जेम है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है. तो आई फेल्ट देयर वॉज समथिंग दैट आई कैन कैपिटलाइज ऑन, एंड लकीली आई डिड. लकीली आई पुट इट ऑन द फर्स्ट number on my list and I got it. I got inside, and my first year in Shahid Sukhdev has been a mixture of frustration, mixture of excitement, mixture of adrenaline, mixture of everything you can think of, every emotion that you can think of. I mean, I'm at a loss for words. मेरे को एक ही साल हुआ है इस कॉलेज में, and I want to live here forever. यहाँ के लोग, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का prestige is known across India. And if I had to sum up Shahid Sukhdev in a single word, it would be incredible. It's an incredible life transforming journey. I feel every college is in its own respect, but because I only have the experience of Shahid Sukhdev to kind of compare it to, तो मेरे लिए it is a transformative journey. But I think in every college it is a transformative journey for you, because to first time घर से दूर हो, first time you're on your own, figuring things out. So it was the same for me, and yeah, that is about Shahid Sukhdev. ओके सो हम जनरली बात करते हैं अबाउट एवरी कॉलेज. कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है ऑफ एवरी कॉलेज. सो व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू योर कॉलेज एज ए CBS? I think the normal disadvantages कॉलेज के जो होते हैं, lack of infrastructure, lack of placements, एक्चुअली हमारे कॉलेज में नहीं है. आई डोंट थिंक अभी हमारे स्टार्ट्स रिलीज़ हुए हैं, बट इन कंपैरिजन टू एवरी अदर DU कॉलेज जिनके अभी तक स्टार्ट्स रिलीज़ हुए हैं, SRCC, सेंट स्टीफन्स एंड एवरी अदर कॉलेज, वी हैव द हाईएस्ट एवरेज एंड हाईएस्ट मीडियन. तो अगर तुम शहीद सुखदेव में हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्लेसमेंट्स मतलब केयर फ्री हो जाओ, क्योंकि हर कॉलेज में वो पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है, और हर कॉलेज में वो पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिसकी प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती है. एंड प्लेसमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क यू डू within those years. So with respect to Shahid Sukhdev, placements is not an issue, quote unquote, मतलब terms and conditions applied अगर तुम work डालते हो तो. Infrastructure it's top notch. अभी नया कैंपस बना है इन रोहिणी. उससे पहले there was a separate campus, तो बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल नए प्रोजेक्टर्स, डेस्क एंड एवरीथिंग. तो that is also not an issue. But a major issue that I feel is I would say for me personally it was work life balance, because Shahid Sukhdev में as you said बहुत सारी opportunities हैं, बहुत सारे channels है to explore yourself. तो आप इतना ज़्यादा engross हो जाते हो कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, आपको ये भूल जाते हो कि कैसे you have to unwind yourself. For in specifically in Shahid Sukhdev, क्योंकि
शहीद सुखदेव इज़ नोन एज द कॉर्पोरेट हाउस इन अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो कॉर्पोरेट के बच्चे हैं ये, ऐसा करके बोलते हैं. इट्स नॉट अ टॉन्ट, और हम इसको टॉन्ट भी नहीं लेते हैं. वी एक्चुअली एन्जॉय इट. बट कभी कभी ज़्यादा एन्जॉय करना भी इट्स एडिक्टिव, और जब भी कोई किसी भी टाइप का एडिक्शन इज़ बैड फॉर यू. एंड वर्किंग टू मच साउंड्स गुड, बट इट्स एक्चुअली नॉट गुड. क्योंकि यू डोंट, मतलब आप फिर अगर आप चलो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन एंगेज्ड इन 3 प्रोजेक्ट्स, शहीद सुखदेव के एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ यू आर एंगेज्ड इन एन इंटर्नशिप, इफ़ यू आर एंगेज्ड इन लाइफ प्रोजेक्ट जो तुम्हें सोसाइटी से मिला है, इफ़ यू आर अ POR, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सोसाइटी, योर 24 आवर्स आर टोटली डिवोटेड टू दैट. आपको और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा. इफ़ यू गेट अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू फोरगो दैट. तो ऐसा बहुत सिनेरियो बन जाता है सुखदेव में, एंड आई फील दैट इज़ अ डिसएडवांटेज. या दैट इज़ वन मेजर थिंग दैट आई फील इज़ अ डिसएडवांटेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा बैच है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि हमारा कैंपस लाइफ नहीं है. हम ऑफ कैंपस कॉलेज है इन रोहिणी, और रोहिणी इज़ नॉट ऑल दैट हैपनिंग. रोहिणी में मेजरली 2 कॉलेजेस है, DTU एंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड शहीद सुखदेव. नॉट अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू हैंग आउट विद. मतलब तुम्हें अगर कहीं घूमने जाना है तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस ट्रैवल करना पड़ेगा. वो 40 मिनट्स का ट्रैवल रहता है विद योर फ्रेंड्स थ्रू मेट्रो. तो इट्स नॉट रियली इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, बट आई डोंट फील दैट इज़ अ रियल डिसएडवांटेज. अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल पार्टी करनी, यू कैन ऑलवेज गो देयर. बट आई फील अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी 24 आवर्स सराउंडेड बाय पार्टी, तो तुम फोकस नहीं कर पाते जिस चीज़ पे तुम्हें फोकस करना है. So for me that is not a disadvantage, but the majority of the student batch thinks it is a disadvantage, so I'm just stating it here. Yeah, like that totally depends on what your ultimate like need is. Yeah, क्योंकि perspective. कुछ लोगों के लिए party is like the ultimate need, but you do not want that. You want to focus on your career, so that's different for everybody. Yeah. So SSCBS generally एक consensus है कि it's more academically oriented. वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है, लाइक व्हाट आई हैव हर्ड. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? व्हाट डू यू बिलीव इन दैट? I would say it's the total opposite. Academics पे लोग फोकस नहीं करते हैं, बट नॉट एट द एक्सटेंट जैसा मेरे को अभी बोला गया. It's more heavily focused on extracurriculars in the sense of case competitions. Case competition, शहीद सुखदेव is known for case competitions. अगर तुम शहीद सुखदेव की स्लाइड देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो शहीद सुखदेव की स्लाइड है, ऐसा बोला जाता है DU में. IIM लेवल पे भी वी आर वेरी वेल नोन. रिसेंटली माई फ्रेंड जस्ट गॉट एन IIM बैंगलोर विन, आई थिंक 1 हफ्ता हुआ है. एंड अब आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर case competitions there are internships. So I feel every student in our college does multiple internships. They do multiple life projects. We have 50 plus societies, तो वहाँ पे PORs है, societies को handle करना है, TICs को handle करना है. We have Crescendo, तो Crescendo उसमें from scratch हर साल start करते हैं. तो the workload is heavy, I agree. Shahid Sukhdev is very heavy in terms of workload, but the academic portion in it is very low as compared to what has been stated in Delhi University. मतलब academically the workload is lower, but जो extra curricular है, जो additional चीज़ें तुम करते हो, that just makes academic things take a back seat comparatively. अंडरस्टूड. सो एक मिथ ब्रेक हो गया यहाँ पे कि academically oriented नहीं है SSCBS. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि वाई SSCBS, तो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट. तो लेट्स फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स नाउ टॉक अबाउट CUET, क्योंकि राइट नाउ द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन येट रिलीज्ड, बट फॉर द नेक्स्ट बैच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत हम CUET के बारे में इंसाइट्स दे दें, बिकॉज जनरली जैसे SSCBS इज़ वेरी अंडररेटेड. आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि बच्चों को पता नहीं अबाउट द कॉलेज. दे जनरली टॉक अबाउट नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, तो हम उसके मतलब उस टॉपिक पे बाद में आते हैं. लेट्स राइट नाउ टॉक अबाउट CUET. व्हाट वाज योर CUET स्कोर? Mine was 513. It's a bit lower. Don't take it as a target for your CUET, क्योंकि पहला तो हमारे टाइम पे was done for the second time. तो there was a lot of ambiguity कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. And as a result हमारे questions were थोड़ा सा on the, as compared to today जो मेरे को पता चला है कैसे questions आते हैं, they were on the easier side. I recently had a conversation with a person. उसने बोला कि हमें तो एक लाइनर डाल देते कि ये लाइन किसने बोली है हमारी टेक्स्ट बुक में. तो comparatively R was very easier.
बट स्टिल मेरा स्कोर कम रहा था. दैट वॉज ड्यू टू माई ओन थोड़ा सा lax attitude. And I got in why because I had a quota. I'm a Kashmiri migrant, तो उसकी वजह से I got lucky and got into Shahid Sukhdev. If you're a general person तो उसके लिए it is very difficult. You have to work hard. कॉलेज में आके आई डोंट थिंक कि लोग इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम SC हो ST OBC या EWC, नहीं फ़र्क पड़ता. तुम कॉलेज में आ गए, आपको यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो सब फिर फ्रेंड्स ही बन जाते हैं. बट बिफोर कमिंग टू एंटरिंग द कॉलेज यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. तो आई हैड द लक ऑफ अ कोटा. बट इफ़ यूर अ जनरल तो जनरली आपको बहुत हार्शर कंडीशंस फेस करना पड़ेगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इफ़ यू आर अ OBC या फिर SC ST, इट डजंट मीन यू कैन टेक अ लैक्स एटीट्यूड, क्योंकि बाकी OBC SC ST वगैरह भी है. तो यू कांट जस्ट गो अहेड एंड लीव योर स्टडीज़, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स पीछे चल रहे थे. एग्जाम्पल या ओके, सो जनरल के लिए व्हाट डू यू बिलीव, लाइक सुखदेव के लिए व्हाट इज द स्कोर दैट इज रिक्वायर्ड? I mean, my friends are all India rank 2, all India rank 30, 39. So I feel you require a very high score. क्योंकि मैथ्स है इसमें, GT है, तो कंसिडरेबली जो कट ऑफ रहता है वो कम रहता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, किड्स हैं, उनका जनरली इंग्लिश में हाई रहता है. मेरा भी हाई था, आई थिंक ऑलमोस्ट फुल था. तो GT में और इंग्लिश में इट्स ऑन द लोअर एंड. क्योंकि वो इंग्लिश GT है और वो वो GT और मैथ्स है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली कंसिडर्ड हार्डर, और वो हार्डर भी होता है. तो आई वुड से अ सेफ स्कोर इज़ अबव 550. ओके, यू हैव अबव 550 और उस पर मत जाना जो रैंकिंग्स आती है, या फिर जो आई थिंक रैंकिंग्स आती है ना CUET के फर्स्ट एक बार रैंकिंग्स आती है, उस पर मत जाना, क्योंकि उसमें SRCC वाला बंदा भी दिखेगा, उसमें सेंट स्टीफन वाला बंदा भी दिखेगा. ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कोर्स, या उसको सुखदेव के बारे में पता भी नहीं होगा, बट फिर भी तुम्हें उसका कंपेयर करा जाएगा, तो उस पर मत जाना. वेट, बी पेशेंट. फर्स्ट कट ऑफ में नहीं निकल रहा है, सेकंड कट ऑफ में चांस है. स्पॉट राउंड तक होप नहीं लूज़ करना, बट ऐसा नहीं कि प्लान बी रेडी नहीं रखना. आई ऑलरेडी हैड अ प्लान बी रेडी, और थैंकफुली मेरा प्लान ए काम कर गया मिराक्युलसली, तो मेरे को प्लान बी फॉलो नहीं करना. okay, so what are the 3 pieces of advice that you wish to give to your juniors who are appearing for CUET next year? CUET, okay. First one is don't take your 12th examinations for granted. अब CUET आ गया है, तो कॉलेज की एंट्रेंस इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर 12th के मार्क्स, सॉरी, but you have to do an MBA. If you are coming into Shahid Sukhdev, तो you are coming into the field of marketing, business या finance, और उसका next step MBA ही है. तो MBA के इंटरव्यूज़ में, MBA की वेटेज में there is a GPA system, जैसे कि आपका 10th में कितना मार्क्स था, आपका 12th में कितना मार्क्स था, और आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था. It is said कि 90 in your 10th, 90 in your 12th, and 9 GPA in your graduation is considered a top level score. It is called a 999. So if you forego your 12th का examination and you do badly, then it hurts your chances of getting into your dream MBA college. क्योंकि in reality हम सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं. द एंड गेम इज़ दी PG कोर्स. वही हमारा ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट 30 years of our career. The undergraduation course just gives us the you can say the foundational level kind of stuff, but the end game is our PG. तो उसके लिए you don't harm your chances, तो always have a target in your mind कि above 90 तो स्कोर करना ही है, चाहे 91 हो, 92 हो, 90.5 हो, वो भी 9 काउंट किया जाता है. कीप अ टारगेट ऑफ 90 फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. 8 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, बट 7 से नीचे बिल्कुल नहीं. 7 से नीचे अगर जाओगे तो मेजॉरिटी ऑफ IIMs तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर देंगे. 7 पे भी डिफिकल्ट रहता है अगर तुम्हारे बाकी लेवल पे भी कम मार्क्स रहे. अबव 8 इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर चांसेस. सेकेंडली आई वुड से कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GT में मेरे बहुत मार्क्स गंदे थे कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. क्योंकि GT वॉज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. GT जैसा मैंने कभी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था एट इंडिया लेवल, और उसके जो क्वेश्चंस इन एक्चुअलिटी आए थे मेरे टाइम पे, मैं कंपेयर नहीं कर सकता अभी उसको करंट टाइम के हिसाब से, क्योंकि अब तो डिफरेंट हो गया पूरा. आई वुड से कि वो बहुत ही डाइवर्स थे. स्टार्टिंग से ही एक बुक पकड़ लो. मल्टीपल बुक्स को मत करो कंसल्ट, क्योंकि मल्टीपल बुक्स में कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग मेथड्स होते हैं. आंसर सही निकलेगा बट कन्फ्लिक्टिंग मेथड्स है, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे.
कन्फ्यूजन में फिर तुम्हारा एक तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि भाई ये सिंपल आंसर नहीं निकल रहा, पहले इससे निकल रहा था मेथड से, अब ये मेथड आ गया, उससे तुम्हारा ही डाउन हो जाएगा मोटिवेशन और फिर तुम ही फंस जाओगे. तो एक बुक को कंसल्ट करो, उसको टेक इट एज योर बाइबल और उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करो टिल द एंड. आफ्टर दैट आई वुड से स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि इट्स माई प्रेडिक्शन कि CUET विल बिकम द नेक्स्ट JEE इन अ कपल ऑफ ईयर्स. और टेकिंग क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेंबर द टर्म, व्हेन यू जस्ट फोरगो एन ईयर टू अपेयर अगेन. ड्रॉप. Taking a drop for CUET will become very common, क्योंकि CUET will be the only gateway for a good UG college. So अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेने, अगर तुम्हें you don't want to fall behind, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ट्रीट इट एज अ JEE. तुम्हारे लिए अब JEE है ये, मतलब हाँ वर्डिंग डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट इज सेम. अगर तुम्हें फ्लैगशिप कॉलेज में एंटर करना है तो वैसे जैसे JEE में IIT होता है, यहाँ पे SRCC है, यहाँ पे सेंट स्टीफन्स है, यहाँ पे सुखदेव है. तो treat it as such, treat it as a India level competition. And आप अपने टीम अपने हाँ, I would also add this as a tip. Don't compare yourself to a classmate. A lot of my classmates did this, and I don't know, I'm not in contact with a lot of them, but जो जिनके साथ मैं हूँ, they could have done a lot better अगर वो इसको consider करते. So the thing I'm trying to convey is, don't compare yourself to the classmate. He's just a fraction of the students present all across India. You have to broaden your horizons. You have to think differently for CUET. CUET is a different exam, so you have to change your mindset. You have to change your way of thinking to excel in this exam. तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरे साइड वाला जो स्कूल है वहाँ पे भी कोई बंदा है जो CUET टॉप कर सकता है, या मेरे को उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा शहीद सुखदेव में जाने के लिए. तो तुम्हें जब तुम वैसे सोचना स्टार्ट करोगे, तुम ऑलरेडी और मोटिवेटेड फील करोगे. अगर मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, you have to make yourself understand कि अगर तुम खुद के लिए काम नहीं करोगे तो कौन करेगा. You have to take that kind of mindset while going into CUET preparation, क्योंकि it is actually a make or break exam. Yeah, those are my 3 tips. Understood. Great tips. About BMS में GT, Maths and English is the total aggregate उसका consider होता है. GT के बारे में you've already given some insights. Let's talk about Maths, क्योंकि generally जो बच्चे BMS के लिए consider कर रहे होते हैं उन्हें Maths से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है, for economics also. तो Maths is like एक ऐसा subject जिसमें it's like make or break. भले ही उन्होंने 12th में पढ़ा है, but it's like जब MCQ में आ जाता है it's a bit different. So how to approach mathematics for CUET? Actually, I have a very funny story. जिस दिन मेरा मैथ का एग्ज़ाम था फॉर CUET, और मैं NCERT की बुक ले रहा था, मतलब गो थ्रू कर रहा था उसमें अलग अलग चैप्टर्स को. आई रिमेंबर लुकिंग थ्रू द एक्सरसाइजेज जो होती थी, एक्सरसाइजेज 13.1, 13.2 ऐसे करके. तो आई रिमेंबर एक पेज पे मैंने 2 क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली पढ़ा, पूरा उनका सोल्यूशन मैंने अपने दिमाग में याद करा, और आई रिमेंबर्ड द सोल्यूशन जो होता है, क्योंकि इतनी बार हमने पूरे साल प्रिपेयर करा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करा है, तो दिमाग में रह जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर है. वही सेम क्वेश्चन उठ के सेम वर्डिंग सेम नंबर्स के साथ हमारे एग्ज़ाम में आ गया था. आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड कि भाई CUET एग्ज़ाम है. तो मेरे को तो देखना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को आंसर भी याद था. तो आई जस्ट सॉ कि MCQs में है, मैंने टिक कर दिया, आगे बढ़ गया. नाउ डिफरेंट होगा आई थिंक, अब तो वैसा नहीं होगा. तो यू हैव टू नॉट ओनली टेक NCERT बुक्स, क्योंकि NCERT जो भी आएगा NCERT से आएगा, NCERT के बेस के सिलेबस पे ही होता है. और NCERT को तो तुम्हें कंसिडर करना ही करना है. आई वुड रिकमेंड RD शर्मा, क्योंकि RD शर्मा इज़ वेरी मोटी किताब. मैंने कभी कंप्लीट नहीं करी पूरी, मैंने बीच बीच से हमेशा क्वेश्चन उठाए हैं उसके, बट कभी कंप्लीट नहीं करी. वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, इट टेक्स टू मच टाइम. तुम्हें इतना प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा फॉर CUET, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी तुम बोर्ड एग्जाम से निकल के आ रहे होंगे. तुम आफ्टर बोर्ड एग्जाम से 1 हफ्ता तो रेस्ट करोगे ही करोगे, 1 हफ्ता नहीं तो 3 दिन रेस्ट करोगे ही करोगे. उसके बाद थोड़ा सा फिर लेथार्जी आ जाती है, थोड़ा सा फिर लगता है कि यार रुक जाओ, थोड़ी देर और वेट करते हैं. फिर तुम अचानक से RD शर्मा उठा के सॉल्व करने बैठ जाओगे. यू विल बी डिफीटेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे. सो आई वुड से टेक बुक्स दैट गिव द समरी ऑफ द होल चैप्टर इन बाइट साइज्ड कंटेंट, rather than giving you all the material और फिर तुम उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैठ रहे हो. If that makes sense, तो it will be easier on you, it will be good for your confidence, it will be good for you from the point of view of the examination, क्योंकि अब you can't really prepare from scratch, क्योंकि
कुछ एक महीने में तुम्हारा CUET है. You just have to brush up your concepts, brush up your what you know in a sense, rather than going वो चैप्टर जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट है तुम उसको पॉलिश करने बैठ रहे हो. वो चैप्टर जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तुम पहले उनसे स्टार्ट करो, उनको ख़त्म करो. अगर एंड में टाइम बचता है तो डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मोस्ट रिकरिंग थीम है उस चैप्टर से जो तुम्हारा वीक है वो एक बार कॉन्सेप्ट देख लो उसका क्या है. दैट कैन बी रिवॉर्डिंग फॉर यू कंपैरेटिवली कि अगर तुम वीकर चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, सारा टाइम उसमें डिवोट कर रहे हो और फिर जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनसे तुम्हारा कनेक्ट खत्म हो जाए. यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज लाइक दिस फॉर इन मैथ्स स्पेसिफिकली. Okay, so you're pursuing BMS, right? BMS is a very underrated course again. मतलब इस साल तो स्टिल दी एप्लीकेंट्स आर मोर, बट लोग BMS कम कंसिडर करता है बिकॉज जनरली इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लेस अवेलेबल कि क्यों BMS कंसिडर करनी चाहिए हमें ओवर एनी अदर कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ज़्यादा फेमस नहीं है. सो वाई BMS एंड what are the people who should consider doing BMS at Delhi University? Like just a gist. That is a great question actually. तो सबसे पहले the reason BMS is not very popular is BMS is not provided by a lot of colleges. I think that is the reason for it. For example, the most popular courses in Delhi University are BCom Honours and normal BCom and BA Economics Honours. Why? Because the top colleges provide those courses and every other college provides those courses. अब वो डिपेंड करता है कि तुम किस कॉलेज में जा रहे हो फॉर द एंड रिजल्ट जो तुम्हारा 3 ईयर की डिग्री के बाद मिलेगा तुम्हें. बट फॉर BMS इट्स डिफरेंट. बहुत कम कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. BBA FIA दैट इज़ द अदर कोर्स, फाइनेंस स्पेसिफिक कोर्स, वो सिर्फ आई थिंक 2 कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. एक इज शहीद सुखदेव एंड अनदर इज़ अ गर्ल्स कॉलेज. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कॉलेज, बट वो गर्ल्स के लिए तो लड़के तो वहाँ एंटर नहीं कर सकते. So the only shot for you to enter BBA FIA, Bachelor in Business Administration, Financial Investment Analysis is the full name. It's quite a mouthful. So for that, for boys specifically, Shahid Sukhdev is your only chance. For BMS, I think it's Kendra Vidyalay, Deen Dayal Upadhyay, Shri Guru Gobind Singh and Shahid Sukhdev. तो मतलब एक हाथ पे गिन सकते हो उतने कॉलेजेस ऑफर करते हैं अच्छा BMS. So that is the reason for lack of information and lack of popularity, you can say, among school students. Or we are trying to change that. I am part of the PR cell, so we are actively reaching out to schools. We are actively giving information about Shahid Sukhdev, giving information about the courses that we offer, placements के बारे में वगैरह वगैरह. Keeping that aside, who should pursue BMS? If you are not really sure कि तुम्हें क्या करना है आगे जाके, इफ़ यू आर नॉट रियली श्योर कि तुम्हें अकाउंट्स में एंटर करना है, इफ़ यू आर नॉट रियली श्योर कि तुम्हें फाइनेंस ही तुम्हारी ब्लड लाइन है, तुम्हें वही कैरी फॉरवर्ड करनी है, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें मार्केटिंग अच्छा लगता है नहीं लगता है, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, यू वांट मोर टाइम ऑन योर हैंड टू एक्सप्लोर द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ, दोज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट शुड परस्यू BMS आई फील. क्योंकि BMS गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन अटैच नहीं है. तुम्हें BMS में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं. हमें अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं, हमें मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, हमें ऑपरेशन भी थोड़ा पढ़ाते हैं, हमें फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस सब कुछ पढ़ाते हैं. तो यू हैव द फिजिबिलिटी टू पिवट इन फ्यूचर. अगर तुम्हें पता चलता है कि भाई ये फील्ड तगड़ी है, इधर एंटर करना है मैंने. मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी फाइनेंस में फुल्ली एनग्रोस्ड है, दे आर परस्यूइंग CA. मेरे कुछ फ्रेंड्स आर फुल्ली एनग्रोस्ड इन मार्केटिंग, दे आर डूइंग मल्टीपल मार्केटिंग इंटर्नशिप्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर डूइंग मार्केटिंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग जो तुम सोच सकते हो which a marketing person would do. मेरे कुछ friends are really interested, are really into data analytics. Data analytics is a growing field and I actually recommend this field क्योंकि इसमें बहुत opportunities grow करेगा, क्योंकि ML AI से तो बहुत increase हुआ है. तो do research on this. And BMS is actually a kind of a melting pot. अलग अलग interest के बच्चे आ जाते हैं. जैसे I said business analytics, there is corporate finance, there is normal finance, accounting, there is marketing, there is operations. यहाँ पे तुम्हें intermingling of perspectives and ideas मिल जाता है. तुम डिस्कवर कर सकते हो भाई ये फील्ड क्या है, ये फील्ड में क्या होता है, ये फील्ड में परस्यू कर सकता नहीं कर सकता हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स आर रियली इनटू ड्रामेटिक्स, दे वांट टू परस्यू अ करियर इन ड्रामेटिक्स. BMS provides them this that flexibility क्योंकि BMS is not a really heavy course in terms of academics. तो तुम उसमें अपना फ्री टाइम डिवोट कर सकते हो टू योर पैशंस. One of my friend is currently in Srinagar. He's in Srinagar, I think, a city near Srinagar.
So he's actually doing right now a basic rock climbing course. Passion follow कर रहा है. BMS provides him the flexibility to do that, or a backup plan of BMS Shahid Sukhdev to fall back on. अगर उस क्योंकि I think he would be starting a startup around rock climbing and trips. So if that doesn't work, he has the tag name of Shahid Sukhdev and BMS to fall back on. So it also provides you the security. It also provides you the flexibility. So keeping these things in mind, if you are someone who is looking for flexibility, security, diversity of thoughts, for exploring various fields, exploring various aspects of yourself, I feel BMS is the choice for you. Great advice, I believe, क्योंकि BMS has a very less knowledge amongst the students जो भी स्कूल में ही है या फिर कॉलेज में भी. BMS is considered a very less talked about course. उसको बाकी जनरल रेगुलर कोर्सेज से कंपेयर कर देता है कि ओ बी कॉमर्स जैसा ही होगा एंड एनीथिंग लाइक दैट. तो ऐसा पता नहीं है. सो ग्रेट इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स कम टू द प्रेफरेंस लिस्ट फॉर BMS. टॉप 5 कॉलेजेस. I think I stated them already. Shahid Sukhdev top पे रहेगा. I would say शहीद भगत सिंह. I don't remember वो अगर BMS provide करता है. भगत सिंह नहीं करता, नहीं करता. तो दीनदयाल उपाध्याय I would keep second. का infrastructure is really amazing. उनके जो बच्चों से I have interacted, they are really good. They are doing quite well for themselves. उसके बाद I would say Keshav Mahavidyalaya is also good. I went there for a poster drive. I interacted with some of the kids. So really enjoyed the campus. बहुत cozy सा campus है. Really liked it. After that, Shri Guru Gobind Singh College of Business Studies is also good. Indraprasth University, if you want to go, that university also provides BMS, which is also good, which is also reputable. उसके बाद I would suggest keeping other courses in your preference list. क्योंकि इससे अगर नीचे जाओगे then तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कि तुम्हारा कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है. अगर इफ़ यू गो टू फार बिलो तो यू एक्चुअली डिग योर सेल्फ इन अ डिच. तो तुम्हें इसमें फिर बाकी कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे. यू कैन पुट इन बी कॉम ऑनर्स, यू कैन पुट इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, या अगर तुम्हें कोई और भी इंटरेस्ट है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम आगे जाके पिवट कर सकते हैं मार्केटिंग. Mass actually journalism and mass media is a really less talked about course which is very popular with the people who know it, and it's really rewarding for guys because मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इसमें. some of my friends are from mass media, तो it do research about it. बहुत अच्छा कोर्स है वो. तो आफ्टर नंबर 4 आई थिंक उसके बाद तुम्हें बाकी कोर्सेज ऐड करने चाहिए. इफ़ यू रियली वांट टू डू BMS तो 4 तक ही रखो. या आई एम श्योर देयर आर अदर कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं. अगर तुम्हें चाहिए ही चाहिए और यू डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप और एनीथिंग तो कर दो ऐड, बट इट वोंट बी माय पर्सनल सजेशन. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम लाइक ऐसे CBS. पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं. एक जनरल ओपिनियन ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ ओवर हाइप्ड amongst the people who are not in DU or even in DU. सब कहते हैं कि ओवर हाइप्ड है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आई थिंक इट्स नॉट. It stands on every word जो बोला जाता है. It is crazy. सब कुछ मिलेगा. हर टाइप का बंदा मिलेगा, हर टाइप की बंदी मिलेगी, हर टाइप के लोग मिलेंगे, हर टाइप के ओपिनियंस मिलेंगे, हर टाइप के कॉलेज मिलेंगे, हर टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे, हर टाइप के इंटर्न्स मिलेंगे. इतना डिफरेंट, इतना डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है कि मतलब तुम लोगों से दिन भर बात कर सकते हो, तब भी तुम्हारे पास आइडियाज़ बचे रहेंगे बात करने के लिए. स्टार्टअप ओनर्स हैं यहाँ पे. I met a guy from Maharaja Agrasen. I think Maharaja Agrasen में भी BMS ऑफर किया जाता है. He left IIM Ranchi for why? Because IIM Ranchi, just to give you a bit of context, IIMs में the curriculum is very rigorous. तो ट्राइमेस्टर के वहाँ पे रहता है, तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक होता है वो. एक्चुअली बहुत रिगरसली एकेडमिक होता है वो. तो he wanted to pursue his startup, तो उसने IIM Ranchi छोड़ के महाराजा अग्रसन में ले लिया. तो I thought that was really wild कि भाई IIM छोड़ दिया तूने फॉर महाराजा अग्रसन. मानता हूँ स्टार्टअप करना है बट इट कैन वेट. बोलता नहीं, मेरे को अभी करना है. और आई मेट हिम एट यू कैन से अ ग्रांट गिविंग इवेंट, उद्यमी, दैट इज द सेंट्रल इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे आई एक्चुअली मेट दी CEO एंड फाउंडर ऑफ चाय सुट्टा बार. आई मेट दी CEO एंड फाउंडर ऑफ Naukri.com. मतलब मैंने पर्सनली बात नहीं करा बट उनके थॉट्स सुने मैंने.
एंड दैट वाज रियली आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और वहाँ पे मैंने इतने सारे स्टार्टअप ओनर से बात करा. देयर वाज अ गाय फ्रॉम पुणे, कबाड़ हटाओ करके उसका स्टार्टअप है. हिज स्टार्टअप वाज वैल्यूड एट 5 CR और वो वहाँ पे ग्रांट के लिए आया था. तो क्रेजी लोग आते, क्रेजी बैकग्राउंड से आते. अमीर मिलेगा, नॉट सो अमीर मिलेगा, मेंटली स्ट्रांग लोग मिलेंगे, सोशल लेवल लोग मिलेंगे, इंट्रोवर्टेड लोग मिलेंगे. सबके पास अपने अपने क्लब्स है, सबके पास. और क्लब्स तो कमी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एंड कीपिंग इट शॉर्ट, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट कीपिंग इट शॉर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज रियली रिवॉर्डिंग इफ यू गिव योर सेल्फ द चांस टू गेट इमर्स्ड इन इट. अगर नहीं दोगे तो फिर यू विल बी केप्ट इन योर ओन शेल, अलग से रहोगे. हाँ, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत रहेगा ग्रोथ, बट इफ़ यू embrace the Delhi University culture, you will grow exponentially. इतना ग्रो करोगे you won't be able to recognize yourself. एक साल पहले I don't think एक साल पहले अनीश would be able to recognize me कि मैं एक पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहा हूँ. It would be मतलब मेरे दिमाग में नहीं आएगी ऐसा थॉट. जम्मू में बैठा हूँ मैं एंड या तो give Delhi University the chance to make you grow. बस everything else will take care of itself. डेफिनेटली. अब थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं. बाहर से जो बच्चे आते हैं, लाइक अभी भी रिजल्ट्स आए नहीं है, बट जनरली हमें नॉर्थ कैंपस चाहिए, नॉट एनी अदर कैंपस. फिर वो कॉलेज के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि एक ओपिनियन ये है कि नॉर्थ कैंपस इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी. बाकी किसी और कैंपस में आप चले गए, इधर वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस, साउथ कैंपस, इट इज़ नथिंग. इट इज़ नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी. यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप उस कैंपस में हो तो, क्योंकि वो कैंपस लाइफ नहीं मिलती. अगेन लाइक आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो स्टेट करते हैं कि कैंपस लाइफ नहीं है NSS-CBS. सो वाई नॉर्थ कैंपस इज़ बिन टॉक्ड अबाउट, और क्या ये सच में सच है, लाइक दिस ओपिनियन अबाउट नॉर्थ कैंपस बीइंग बेटर देन एनी अदर कैंपस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ़ यू आर अ व्यूअर और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि नॉर्थ कैंपस का इतना हाइप क्यों है, जस्ट ओपन योर गूगल मैप्स, वहाँ पे SRCC सर्च करो, वो तुम्हें शो करेगा SRCC कहाँ पे है. थोड़ा उसके आसपास स्क्रॉल करोगे ना, सेम स्ट्रीट पे तुम्हें सेंट स्टीफन्स वहाँ दिख जाएगा, तुम्हें हंसराज वहाँ दिख जाएगा, रामजस वहाँ दिख जाएगा. तो ऑल मेजर कॉलेजेस आर देयर. तो इसलिए हाइप बना रहता है कि स्टूडेंट कल्चर बहुत ज़्यादा है. आई हैव विजिटेड मतलब बहुत सारे ईस्ट कैंपस मैंने विजिट करा है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस. तो आई फील जस्ट फोकसिंग ऑन नॉर्थ कैंपस इज़ एक्चुअली वेरी नैरो माइंडेड. कि अगर इफ़ यू आर गेटिंग BCom ऑनर्स इन वेंकी, आई वोंट से इट इज़ अ बैड मतलब रिजल्ट. बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्यों नहीं करोगे तुम. हाँ, इफ़ यू थिंक कि यू कैन एक्चुअली क्रैक SRCC, इस साल तुम थोड़ा सा बीमार हो गए या फिर एनीथिंग हैपेंड और तुम you weren't able to give 100% of yourself and you are willing to take a drop, it's your call, take it. But by no means at all BCom honors in Venki is bad. Bhagat Singh is also in South Campus, I think. So I visited that campus. Amazing campus, amazing log again. Shahid Sukhdev is an exception here. अब तो off campus होके भी we have the highest placements across Delhi University. So we are also an exception from the norm. तो I would say कि थोड़ा broaden your horizons as a student. Explore outside North Campus, क्योंकि देखो तुम्हें समझना पड़ेगा North Campus में भी कुछ limited amount of seats है. तुम चाहो ना चाहो you can't always get what you want. तो तुम्हें थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कि आसपास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नेवर लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो. अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह सकते हो, रहो. इफ़ यू आर ओके विद नॉट गेटिंग नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस मिल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है. आई डोंट फील देयर इज़ एनी इशू. कुछ बच्चे SRCC छोड़ के शहीद सुखदेव आते हैं, कुछ बच्चे शहीद सुखदेव छोड़ के SRCC जाते हैं. आई फील इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस, बट प्रेफरेंस तुम तब बना सकते हो व्हेन यू नो अबाउट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है. अगर तुम पहले से ही परसीव नोशन लेके चल रहे हो कि नॉर्थ कैंपस इज सुपीरियर टू एवरीथिंग एल्स, आई फील दैट इज़ बायस्ड, और वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे तुम लाइफ का डिसीजन लेना इज़ अ बैड कॉल ऑन योर पार्ट. तो थोड़ा सा ब्रॉडन करो अपने होराइजन, थोड़ा सा डिस्कवर साउथ कैंपस. आई थिंक अगर एंड मेक अ लिंक्डइन अकाउंट, टॉक टू नॉर्थ कैंपस के सीनियर्स, साउथ कैंपस के सीनियर्स, शहीद सुखदेव के बच्चे, उनसे पूछो कॉलेज कैसा है. फर्स्ट हैंड देंगे तुम्हें रिव्यू.
वैसा रिव्यू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ऑन द इंटरनेट. दैट विल बी द जेन्युइन एंड द मोस्ट ट्रस्टेड रिव्यू यू कैन गेट. इंडिया टुडे की रैंकिंग्स ट्रस्ट नहीं करनी है, कहीं की यूट्यूब वीडियो की रैंकिंग ट्रस्ट नहीं करनी है, उसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो बंदा वहाँ पढ़ रहा है. आई वुड सजेस्ट दैट एंड आई वुड सजेस्ट कि ब्रॉडन योर हराइजन, थोड़ा रिसर्च करो. या आई ऑल्सो बिलीव, मतलब जब लास्ट ईयर मैं एडमिशन्स का आई वॉज थिंकिंग अबाउट एंड एवरीथिंग की प्रेफरेंस लिस्ट का, आई हैड नो आइडिया बिकॉज इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थी अबाउट प्रेफरेंस लिस्ट. आई वॉज टोटली बिलीविंग दैट. और उसकी वजह से मेरा एडमिशन अलॉटमेंट लिटरली वॉज वन ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियोज दैट हैपेंड टू मी. तो फिर जाके बात करो, लाइक नोबडी सेज नो. अगर आप अच्छे से अप्रोच करोगे ऑन लिंक्डइन और बात करने से यू गेट अ प्रॉपर ओपिनियन, अ वन लाइक first hand opinion of the person who is pursuing that course there. So yeah, something like that. Yeah. Also, I believe. I have a crazy story about this. तो एक्चुअली हमने हायर करा था एक करियर कंसल्टेंट को फॉर मेकिंग माई प्रेफरेंस लिस्ट. उसने जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, मैंने उसको शहीद सुखदेव के बारे में मैंने अपने पे ही थोड़ा सा रिसर्च करा था. तो आई न्यू कि बहुत अच्छा कोर्स है, इट शुड बी अमंग द टॉप 3 ऑफ माई चॉइसेस एटलीस्ट. मैंने उसे शहीद सुखदेव का नाम लिया, उसने बोला अरे इसको 15-16 पे रखो. यू कांट ऑलवेज ट्रस्ट दोज पीपल जो बोलते कि वो एक्सपर्ट है. अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद के रिसर्च स्किल्स. कुछ भी ऐसे आई बॉल मत करो क्योंकि दिस इज अ पिवटल पॉइंट ऑन योर लाइफ. तुम्हारी मिस्टेक, अगर तुम शहीद सुखदेव में जा सकते थे, तुम्हारी मिस्टेक से अब तुम नहीं जा रहे हो. तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. तुम कंसल्टेंट को क्या बोलोगे? तुम तो उसका मुंह देखना भी नहीं चाहोगे फॉर योर लाइफ नाउ. तो अगर मेरे को नहीं पता था सुखदेव के बारे में, आई मोस्ट प्रॉब्ली वुड हैव एग्रीड विद हिम कि हाँ इसको 15 पे रख दो और मैं अभी किसी और कॉलेज में होता. तो ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ रिसर्च ऑन योर पार्ट, दैट इज अ मस्ट. या रिसर्च प्लेज अ लॉट ऑफ रोल क्योंकि सबके लिए अलग फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए. किसी को सोसाइटीज़ लाइक इंपॉर्टेंट होती है फॉर पीपल लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उनके लिए ड्रामेटिक्स, लाइक इवन द सिंगिंग सोसाइटी, डांसिंग सोसाइटी, वो भी मैटर करती है कि किस कॉलेज में अच्छी है तो दे वुड चूज़ इट. कहीं प्लेसमेंट्स मैटर करती है, कहीं कॉलेज की रेप्यूटेशन भी मैटर करती है. सबके लिए अलग फैक्टर्स होता है आई बिलीव. ग्रेट पॉडकास्ट, great insights. Thank you so much, Anish, for joining in. Any closing statement that you wish to give? I had a question because audience भी सोचेगी ये. I had a question for you. Why did you start this podcast and what are your plans with this podcast? क्योंकि it is of course a great initiative and I'm really inspired by this. और बहुत cool initiative है. In truthfully बहुत cool है. तो मतलब why? Basically. Okay, so पर्सपेक्टिव्स इसलिए बिकॉज आई बिलीव लास्ट ईयर मैंने जितना स्ट्रगल किया हो जाए, एज आई सेड, लाइक मेरी प्रेफरेंस लिस्ट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट दैट यूड एवर सी. वो क्यों? क्योंकि देयर वाज अ मिक्स ऑफ ओपिनियंस यार. मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हु वुड बी राइट, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. इतनी सारी वीडियोज़ है, इतने सारे लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं. सो आई हैड नो सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं जान पाऊँ वट एक्चुअली द पर्सन इज स्टडिंग देयर उसके ओपिनियंस क्या है. सब जनरली जाके लिंक्डइन के डीएम्स में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. सबको चाहिए एक प्लेटफॉर्म. सो आई बिलीव मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आई क्रिएटेड दिस, आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट. पहला एपिसोड है. आई एम ऑल्सो नर्वस. मुझे भी नहीं पता कि हाउ वुड दिस परफॉर्म, क्योंकि very less chances of something like this performing well on YouTube, but let's hope for the best. Let's hope for the best. I want कि और लोग आए अपने colleges के बारे में बताएं, because less talked about colleges बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे CBS very underrated. I truly believe that's why I wanted you on the podcast, ताकि आप बताओ लोगों को कि this college also exists और ये course भी is a good option to pursue. सब in a bubble रह जाता है when it comes to looking at videos on YouTube. Yeah. So that's why this podcast, I believe, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इससे, but I literally want to help people जो चाहते हैं, want to get insights, inner insights from Delhi University. So that's it. I actually think कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि इसमें उनको अलग अलग लोगों के फर्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे. एंड इट्स अ really great name, perspectives. It's a really great name. I like it. So yeah, that is it from me. I think. I hope you guys enjoyed मेरी बकवास. Thank you for joining in. Thank you so much. Thank you guys for watching the video. Thank you for tuning in. We'll be back with another episode of Perspective. Stay tuned. Bye bye.